Hello students, we are going to discuss here genetics, a new chapter, and in this chapter we will basically discuss three main topics, that is genetics and Mendel's laws of inheritance, and third is sex-linked inheritance of diseases. All these three topics will be discussed in detail in this chapter, but before discussing all these three topics, let us read this paragraph that is given in the beginning of this chapter. And in this paragraph, what is written? Here is written that whenever a child is born, the family members usually start comparing the child's appearance as to whom he or she resembles more. Generally, similar thing happens in our families also. Whenever a new baby is born, we start comparing his or her resemblance to the other family members or to his or her parents. So all we know that his or her resemblance is only a matter of chance. Matter of chance means it is a matter of chance, but this matter of chance is governed, no doubt it is a matter of chance कि उसकी resemblance कैसी है, but even then this matter of chance is governed by certain laws also. इस matter of chance के पीछे भी laws हैं कि कैसा chance इसमें appear होगा. So इस chance के पीछे भी laws हैं. So this chapter presents some fundamentals of genetics. हम इसमें पढ़ेंगे जेनेटिक्स के फंडामेंटल्स, जिसमें आ जाएंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है. So before discussing these two important topics, that is Mendel's laws of inheritance and sex-linked inheritance, first we will know some basic aspects of genetics also. As in the previous chapter we have already learned in the second chapter what are chromosomes, genes and some common hereditary traits in humans. As we know what are chromosomes and what are genes, if it is a cell, this is the nucleus, and inside nucleus there is the genetic material. Genetic material, we know that by means of genetic material we come to know that this genetic material has some DNA and what, one more thing is there, that is histone protein. These two things are present in the genetic material, and histone proteins are only binding proteins around which क्या, the DNA strands are coiled and form a chromosome like structure, thread like structure called chromosome. So if we see the structure of DNA, it is a helical structure, double helix structure, and on these two strands there are the arrangement of genes on it. So we know what are chromosomes, we know what are genes, and in the later part of this chapter we will know what are hereditary traits. So let us proceed further. In the next part of the chapter is given what is given, the definition of genetics. Let us discuss this. Genetics क्या है? Genetics is the study of transmission of what? Transmission of body features. Body features में similarities भी हो सकती हैं, differences दोनों ही transmit होते हैं from parents to offsprings. और क्या पढ़ेंगे जेनेटिक्स में? सेकेंड इज लॉज रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन, मीन्स इन ट्रांसमिशन के पीछे सर्टेन लॉज हैं जिससे ये ट्रांसमिट होता है. देयर आर सर्टेन लॉज बिहाइंड दिस ट्रांसमिशन. सो इन जेनेटिक्स वी स्टडी नंबर 1 द ट्रांसमिशन ऑफ body features. Second, we learn laws relating to these transmission. So we should learn the definition of genetics. This is very important to understand. Next that we are going to discuss is, we come to know that who is this person. The name is Gregor Mendel, is an Austrian monk है. He is called the father of genetics. Why he is called the father of genetics? Means Gregor Mendel, born in 1822 and lived his life till 84.
ही वॉज बोर्न इन अ पीजेंट फैमिली, बहुत नॉर्मल फैमिली थी, पुअर फैमिली थी. ही हैड हिज अर्ली एजुकेशन इन मोनेस्ट्री क्रिश्चियन मोनेस्ट्री में उसने अपना एजुकेशन लिया. लेटर ही स्टडीड साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड वेंट टू वियना यूनिवर्सिटी फॉर हायर स्टडीज़ एंड बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी अ टीचर बनना चाहता था. बट his luck didn't favor him and he failed in the examinations of teaching certificate. But what happened later, no doubt he failed in the teaching examination, but बाद में जो उसने findings की जिसकी वजह से he became the teacher of teachers. That is why he is called father of genetics. Why? Because he did some important findings. After his failure in the examination, he came back to his monastery and started what, living there as an abode. बेचारा अकेला रहने लग पड़ा. बट उसने उस मोनास्ट्री के गार्डन में जो पी प्लांट लगे हुए थे उन पे गार्डन पी लगे हुए थे उन पे स्टडी करना शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग एंड हैंडलिंग द डाटा ऑल अबाउट इट्स देयर फीचर्स एंड ही कंक्लूडेड his findings as Mendel's laws of inheritance. एंड जो वो मेंडल ने लॉज क्रिएट करे उन्हीं के बेस पे हमारा आज का जेनेटिक्स एग्जिस्ट कर रहा है. दैट इज़ वाई मेंडल इज कॉल्ड व्हाट, फादर ऑफ genetics. He is called. Next we will discuss about the applications of genetics. What are the applications of genetics? Means इसका benefit, इसका usefulness क्या है human life में. Genetics, first application is genetic engineering. As we know, the word engineering means, if we say mechanical engineering, we means that mending, changing, manipulation of some machines, some changes or addition or subtraction of some tools or any part of the machine. And when we say genetic engineering, that means there will be alteration of what, genetic material means genes, alteration, changes, addition or subtraction of what, जीन्स में कुछ ऐड करना या जीन्स में से कुछ पार्ट रिमूव करना. दैट इज़ द पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो वी कैन से दैट इट इज़ अ टेक्निक इन विच द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे एग्जांपल लिया है बैक्टीरियम का. बैक्टीरियम सेल में मान लें कि उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऑल्टर करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, जिससे कि जो ऑल्टर करेंगे और उसमें कोई न्यू जीन ऐड कर देंगे उस बैक्टीरियम. सपोज दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल, दिस इज़ अ न्यूक्लियस, इज़ द जेनेटिक मेकअप. तो इसका जो जेनेटिक मेकअप है, इसमें जो जीन्स हैं, इसमें कोई जीन हम रिमूव करके उसकी जगह पे न्यू जीन उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे. तो उस न्यू जीन की वजह से अब ये जो बैक्टीरियम सेल है, इट विल बी कॉल्ड GMO मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. और ये पहले से अब चेंज हो गया है. पहले जो इसके फीचर्स थे अब वो फीचर्स इसके नहीं रहे. नाउ इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग क्या, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग रैपिडली एंड मल्टीप्लाई फास्ट एंड वी गेट द जीन प्रोडक्ट. जो हमने जीन उसमें ऐड की थी, अगर ये ग्रो फास्ट करेगा, मल्टीप्लाई फास्ट करेगा तो इसके जो जीन प्रोडक्ट देगा, इसकी जीन जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी. तो इसका एग्जांपल आगे दिया हुआ है कि हार्मोन इंसुलिन, जो कि एक ह्यूमन हार्मोन है, इंसुलिन है, जो ग्लूकोज की डाइजेशन में हेल्पफुल है. ह्यूमन्स डायबिटिक पेशेंट्स में इसका डेफिशिएंसी होता है इंसुलिन का, उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पाता, तो ये आर्टिफिशियली बाहर से इंट्रोड्यूस किया जाता है. ये हार्मोन प्रिपेयर किया जाता है किसमें, बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया हैं उनमें ये जीन इंट्रोड्यूस किया गया और फिर उनमें वो मल्टीप्लाई करके ये जीन जो इनमें इंट्रोड्यूस करा गया तो वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन. सो ये बाहर से इंसुलिन प्रिपेयर करके फिर ह्यूमन बॉडी में पेशेंट में दिया जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग विद एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट पार्ट जो हम एप्लीकेशन में देखेंगे कि जेनेटिक्स का दूसरा एप्लीकेशन कहाँ पे है. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग. द वर्ड काउंसलिंग
From the word counseling we come to know that to conclude something, to discuss and manipulate and ultimately come to a result. So genetic counseling means counseling किसकी, डिस्कशन किसकी, जेनेटिक मेकअप की, जीन्स के बारे में जानना, उसको अंडरस्टैंड करना, मेकअप के बारे में समझना और अल्टीमेटली कम टू a result that whether a person's genetic makeup contains any defective gene, कोई उसके पर्सन में डिफेक्टिव जीन तो नहीं है जिसकी वजह से आगे वाले ऑफस्प्रिंग्स में कोई ये डेडली डिजीज़ ट्रांसमिट ना हो. सो जब मैरिड, न्यूली मैरिड, जब भी कोई मैरिजेबल कपल है उसकी कुंडली मैच करते हैं, उससे बेटर है कि जेनेटिक काउंसलिंग की जाए ताकि उनके जेनेटिक मेकअप में ये ऑब्जर्व करा जाए कि कोई उसमें डिफेक्टिव जीन दोनों में तो नहीं है. इससे क्या हो जाएगा, ये डिजीज़ स्प्रेड होने के, ट्रांसमिट होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे. दीज आर डेडली डिजीज़. हीमोफीलिया क्या है, इसमें क्या है, ब्लीडिंग जो है एक पर्सन को, अगर इसमें ये हीमोफीलिया का जीन ट्रांसमिट हो गया पर्सन में तो क्या होगा, दैट पर्सन विल नॉट सर्वाइव इन द यंग एज, ही वो डाई कर जाएगा. क्योंकि ये क्या है, ब्लीडर्स डिजीज़, एक बार भी बॉडी में कट लग गया तो वो दोबारा क्लॉट नहीं होता, तो सारा ब्लड पर्सन का ब्लीड आउट हो जाता है. सो थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर रिलेटेड टू आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन. दीज आर ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस. सो अल्टीमेटली वी कम टू नो अबाउट द टू applications, important applications of genetics, that is genetic counseling and genetic engineering. Next we are going to discuss the new term, that is heredity. What is heredity? Heredity is defined as transmission of genetically based characteristics from parents to offspring. Means what is this heredity? Heredity means transmit होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं उनको बोलेंगे क्या, हेरिडिटी. हेरिडिटी मीन्स जेनेटिक मेकअप. जेनेटिक मेकअप जो ट्रांसमिट एक्चुअली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसमिट होती है चीज़, दैट इज़ द हेरिडिटी. और इसमें आप कह सकते हो कि लाइक बिगेट्स लाइक. मीन्स cat will produce cats only, dog will produce dog. अब मैंगो सीड ग्रो करेंगे तो मैंगो ट्री ही बनेंगे. ह्यूमंस जो हैं गिव बर्थ टू ह्यूमंस ओनली. मीन्स अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म. सो इट मीन्स हेरिडिटी. बट अगर हम ध्यान से देखें, अगर पॉपुलेशन की बात भी करें, पॉपुलेशन में चले जाएं या फैमिली की बात करें तो क्या है, नो डाउट ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड क्या, होमोसेपियंस. होमोसेपियंस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सब में सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स हैं. बट देयर आर वेरियस रेसेस. वी नो देयर आर नीग्रोज, वी नो देयर आर इंग्लिश पीपल, देयर आर चाइनीज, देयर आर इंडियन रेसेस. वी कैन डिफ्रेंशिएट all these races by their physical appearance. So we know, no doubt we all are similar, but there are some differences also. अगर हम population की बात ना करें, अगर family में भी देख लें, no doubt in a single family, अगर family members में भी देखें हम तो क्या है, what is in the family कि siblings हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग से नो डाउट रिजेंबल करते हैं, बट इवन देन देयर आर डिफरेंसेस. वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो. सो दीज स्मॉल डिफरेंसेस जिनकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं उनको बोलेंगे वेरिएशंस. द टर्म इज़ यूज फॉर differences is variation. So we come to know two terms. One is heredity and second is variations. So next we will discuss character and traits. क्या है character, क्या है, वही जो inheritable features जो पास होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उनको बोलेंगे characters. जैसे कि आ गया आई कलर. आई का कलर जो है दैट इज़ अ करेक्टर, कि कैसा कलर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो पास आउट हुआ है. बट आगे आई कलर की आगे अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं. करेक्टर की आगे फॉर्म हो सकती है कि वेदर इट इज़ ब्लू इन कलर, ब्लू है या ब्लैक है
या ग्रे है या ग्रीन है, देयर आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स उस करेक्टर की उसको बोलेंगे ट्रेट। So what is a character? Any inheritable feature is a character and the alternative forms of the character are traits. There are many examples given here. We inherit thousands of characters from our parents, ठीक है, and few examples are given here. So characters, first is given that is color of eye, इसके traits हो सकते हैं brown और blue, hair shape हो सकता है curly और straight, eyebrow इज अ करेक्टर एंड हैवी है कि थिन है, ये है क्या है इसके ट्रेड्स। सो देयर आर लॉट्स ऑफ, सिमिलरली देयर इज अ स्किन कलर इज अ करेक्टर, बट इसकी आगे अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, एल्बिनिज्म है, नॉर्मल, डार्क, लाइट, मॉडरेट, ये सारे क्या है प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट पे डिपेंड करता है, तो ये डिफरेंट इसकी अल्टरनेट ट्रेड्स हैं। सो ऑल दिस वी कम टू नो दैट व्हाट इज करेक्टर एंड व्हाट इज अ ट्रेड। दिस इज all for today. Thank you.